नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। मैं हूं तरुण शर्मा। आज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज पंजाबीबाद में जिला मंत्री भाजपा की नेता पूजा सहगल जी का स्वागत किया गया। पूजा सहगल जी ने महिला सशक्तिकरण पर स्पीच दी और साथ ही साथ स्टूडेंटों ने सवाल किए जिसका उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। देखिए ये रिपोर्ट तरुण शर्मा के साथ। Constituencies under this list. She has also served as ex-member Delhi Pradesh Karyakarini. She has been the spokesperson for BJP Delhi in district Keshapuram. A culturally rooted person, she has also won Hero Honda singing competition in 2006. Currently, she is holding the managing director position in her company Relaxo Home Appliance Private Limited. So I'd like to welcome ma'am on behalf of our college. I would like to invite her to address the audience and please enlighten us with your knowledge and experiences. Please give a big round of applause for her. सम्मानित मंच और आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैम का, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर दूँ कि 2013 में I started my political career, but not being in it directly. My father, he contested a MLA election in 2013. So I had the opportunity of sharing stages with him. There I realized, and people who were there as audience, they frequently came to me and like, आप अच्छा बोलते हो, आपको try करना चाहिए राजनीति में. I didn't know that that is the only criteria for being in politics, but people were very, very persuasive. Uske baad, my real brother-in-law, one of your pass outs from this university, Saiba, my daughter, she's here very much. He's senior deputy mayor from Haryana currently. So I had the opportunity of sharing a lot of stages with him too. And I was part of many MLA elections before I started my journey in politics. टॉपिक पे जो हमने कुछ शक्तिशाली महिलाओं की बात की और एक पुरानी कहावत है, अभी हम प्रिंसिपल मैम के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. Enough of that saying. हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है और ये बहुत सच्ची सी बात है. आज जितनी औरतें आप इंडस्ट्रीज में देखें, अपने आसपास देखें, फिल्म इंडस्ट्री में देखें, उनके पीछे उनके फादर का, ब्रदर का, हस्बैंड का, फैमिली का, सबका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है, इमोशनल, फाइनेंशियल. सो दैट्स व्हाई दे वुमेन आर देयर हु आर एग्जांपल्स फॉर अस टुडे. अगर मैं इस पूरी बात का सार कहना चाहूँ कि मैं एक एम्पावर्ड वुमन को की परिभाषा को अपने शब्दों में अगर परिभाषित करूं तो किस तरीके से करूंगी? So to me, an empowered woman is the one who not only knows how to earn but also how to spend wisely. The one who knows that she's equally superior without letting her man and her loved ones feeling down. The one who knows that though we've been denied for ages, but I'm not here still to dominate. An empowered one is the one who never quits, believes in herself, and is not dependent on others for their consent and their opinion for her superiority. The one who knows how to balance it all, because balance is the key to a beautiful self and a beautiful life. Thank you, everyone. This session, I think आप उसके बाद कुछ सवाल जवाब करना चाहें, बेशक कर सकते हैं. Feel free to ask questions. Ma'am, women like you basically inspire girls like us very much these days.
basically I would like to ask you that how we can balance our personal life and our educational path to basically become successful in our life. बहुत खूबसूरत सवाल है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक भी। हमारे पॉलिटिक्स में एक प्रशिक्षण शिविर होता है, आप ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं उसको, और वी आर मतलब इट्स कंपल्सरी फॉर अस टू स्टे देयर फॉर 2 nights। एक ट्रेनिंग कैंप है, उसमें पूरे देश भर से मिनिस्टर्स भी आते हैं फ्रॉम नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल, और अलग अलग बात चीज़ों पे दे टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, वेदर इट्स सोशल मीडिया, इट्स IT, इट्स government schemes, it's about of course this empowerment topic, many other different topics they touch। एक बार उस प्रशिक्षण शिविर में किसी ने पूछा कि राजनीति में होने के लिए आपको क्या लगता है सबसे पहली जरूरत क्या है? हम सब बैठे थे, जैसे आज आप यहाँ बैठे, मैं उस तरफ बैठी थी और मेरे सामने मेरे बड़े सीनियर्स बैठे थे, तो किसी ने खड़े होकर जवाब दिया कि सर एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है, इट्स गुड टू लाइक इट्स वेरी नेसेसरी टू बी अ गुड ओरेटर। किसी ने कहा कि सर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आसपास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आपको अपडेट रहना चाहिए, यू शुड बी यू नो। किसी ने कहा सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड होना बहुत जरूरी है, ये आपको दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको मासेस तक लेके जाता है, आपकी अप्रोच बढ़ती है। आई रेज्ड माय हैंड एंड आई स्टार्ट दे टोल्ड अच्छा आप बताएं। आई सेड अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी उम्र में क्यों ना हो, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो करते हो ना करते हो, अध्यात्म एक ऐसी चीज है, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर से जुड़े रहना, जो आपको कभी भी ना तो डगमगाने देगा, ना कभी गलत होने देगा, ना आपको किसी और बाहरी ताकत की जरूरत पड़ेगी आपको संभालने और समझाने के लिए। आप इतने सक्षम हो जाते हैं अपने आप में, अपने आप में पूरा पावर हाउस बन जाते हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी अच्छी किताब से अच्छी सेइंग्स पढ़ते रहें, सुनते रहें, ऐसे लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे बात करें, अपने बड़ों पर विश्वास रखें, बिकॉज दे हैव सीन इट ऑल। सो बैलेंस की जहां तक बात है, बैलेंस करना आएगा ही तब जब आप दोनों दुनिया से जुड़े रहेंगे। अगर आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक हो गए तो भी खोखले हो जाएंगे, और सिर्फ अध्यात्म से जुड़ गए तो इस दुनिया के नहीं रहेंगे। सो बैलेंस करना बहुत जरूरी है और वो इसी से आएगा। थैंक यू सर। Good afternoon, ma'am. Yeah, may I know your name, please? I'm Prerna. Prerna. Haan ji, Prerna. Ma'am, I have a doubt that nowadays many girls have a fear to express themselves. Yes. So, ma'am, how can we express ourselves without being judged by anyone? Right. Again a good one. किसी ने बॉय ने कोई सवाल नहीं पूछा। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपके साथ और सपोर्ट के बिना विमेन एम्पावर्ड होगी कैसे? सो आपको अपनी भूमिका, अपनी इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी। वी आर हियर टू पार्टिसिपेट एंड गो हैंड इन हैंड। अलग अलग नहीं है कुछ भी, जब प्रकृति ने नहीं बनाया तो आप भेदभाव ना करें। But anyway, coming back to your question, आपका सवाल था कि हम जब औरतें अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें बिना जज हुए। देखिए, ये हमारा ना कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हमें कोई जज करेगा। मुझे भी इस ऑडिटोरियम के बाहर जाने के बाद भी जज करेंगे, राइट? तो अगर मैं ये सोचूंगी तो मैं बोलूंगी कैसे? मेरे शब्दों में वो स्थिरता, वो पकड़ कैसे आएगी अगर मैं पहले से ही सोचने लगूं कि मेरी ये बात को बोलने के बाद मुझे जज किया जाएगा? वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन कोई भी बात बच्चे जब आप मजबूती से कहते हैं, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के बाद भी बात हैं, पर्टिकुलर आपको कोई सब्जेक्ट मिला है, तब आपकी बात में मजबूती आएगी विद करेक्ट डेटा, लॉजिकल रीजनिंग, यू आर बैकिंग अप योर कॉन्वर्सेशन विद, दैट्स द की टू विन इट, दैट्स द की यू नो टू डू इट। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत बात करती हैं और आपके मन में ये विश्वास है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपको कुछ समय लगे उसे एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में, पर मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात में दम है और मैं इसको बहुत पॉजिटिवली आगे लेके जाना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जजमेंट लोगों की लास्ट कंसर्न होना चाहिए किसी के लिए भी जब आप अपनी बात को कहते हैं। सो इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। इसे निकालिए,
You will be all good and set there. Thank you so much, ma'am. Do we have more questions? All right. Thank you so much. Okay. I'm an alumni of this institute. Right. You just said that there's a saying that behind every successful man there's a woman, and then vice versa behind. But I've got something which says behind every successful woman there is a Kamwali Bai. What do you have to say? Thank you for adding humor to this whole session. मैं इस बात को पूरा नहीं जुटलाऊंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ये निश्चिंतता कि आपका कोई ट्रस्टवर्दी पीछे आपकी उन चीजों की देखभाल कर देगा जो आप उस वक्त नहीं देख सकते, ये बहुत जरूरी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और कहें तो सर, ये पूरी दुनिया चलती हाथ में हाथ मिला के है। हम सब एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से पूरा करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के कंधे का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू ये बहुत ज़रूरी है जी। But ma'am, I would like to say that there are the women in present time that they are looking after their household work also, and they are excelling in the professional field also. So we cannot generalize like this. No, we cannot. It's just that he asked something. So कोई बात नहीं, हर चीज़ को बहुत सीरियसली हम नहीं करते हैं क्योंकि जिंदगी का जो लुत्फ है वो थोड़ा सा ह्यूमर में है कि हम बहुत सीरियस होके किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जी जी जी। Apart from the humor, Yes. otherwise the women are doing the dual responsibility. Yes. And we should appreciate that. And We are here to celebrate that. This platform which ma'am has created, we are here to celebrate those women. We are here to congratulate them. We are here to set our targets by looking up to them. But as I said, they are managing their house. अगर आप मेरी भी उदाहरण लें तो मैं बिल्कुल घर के कामकाज से फ्री नहीं हूँ। I do take care of everything, and I make sure that even if the staff is there to help me out, I look after everything on my own. So that's the beauty of life. Yes. Even sir. My name is Krish. So, ma'am, as you said, government is focusing on women empowerment and providing them with, they are empowering women by making different programs for them. So, why government is not doing any such thing for men? Wow. आपको लगता है कि ऐसा है? Yes, ma'am. I have seen I'll give an example. Great job. Mental traumas. Great question. Mostly men are facing, and because of all the stress and burden, like it's saying that mostly a man has to look after family. It's not I'm demotivating women or like that. Right. But it's like that the control of a family is said to be in men's arms. So there is a lot of stress and focus on men's as for that, and nowadays when women are asking for empowerment, Right. so like equal rights should be given to them. So when government are doing things for women, then why not for men? Thank you. देती हूँ आपके सवाल का जवाब। आपको मालूम है ना ये तालियां आपके लिए थी क्योंकि वो आपके एक सवाल से उनको लगा ये कोई पुरुष प्रधान कुछ उठा जिसने आज पुरुषों के लिए आवाज उठाई है। सी आप लोगों का नाम कृष, मेरे बेटे का नाम भी कृष है। सो कृष, आज भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान माना जाता है। यू नो दैट राइट? औरतों को ताकत मांगने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो ताकतें जो थी वो पूरी पुरुषों के हाथ में थी। जब कोई चीज मांग के लेनी पड़ती है तो उसका स्ट्रगल जो है वो ज्यादा होता है, उसके लिए आवाज भी और ज्यादा उठानी पड़ती है। तो विमेन एम्पावरमेंट का तो ये जवाब हुआ कि जो ताकतें पहले पुरुष के हाथ में थी उसे शिफ्ट करने की बात करती है औरत।
और समाज से गुहार लगाती है कि आप हमें भी वो अधिकार दीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो ईश्वर का प्रसाद है। वो किसको कहाँ कितनी मात्रा में दे दे उसका भेदभाव नहीं है। आप किसी की इंटेलिजेंस सिर्फ उसके सेक्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, राइट? अब आपको ये भी मालूम होगा कि जितने भी पीछे रेप केसेस जब पहले औरतें डालती थी और कहते ही सुनवाई हो जाती थी, उसमें सरकार ने बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। ये इसीलिए लाया कि क्योंकि कुछ औरतों ने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो सरकार ने इसको भी कंसिडर किया। आपने एक पिक्चर देखी होगी बहुत खूबसूरत, कायम की, इट्स करीना कपूर एंड अर्जुन मूवी। नहीं देखी आपने? आपको आज ही देखनी है घर जाके, राइट? सो वो पिक्चर क्या बताती है? वो सिनेमा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, आईना ही है समाज का। उसमें ये बहुत अच्छे से बताया गया, जो कि सच भी है। इट्स नॉट नेसेसरली बेटा इफ अ पर्सन इज बोर्न एज अ बॉय वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन ही होगा, और अगर एक औरत बनकर पैदा हुई है तो वो बेहतरीन गृहिणी ही होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप बहुत अच्छा घर संभाल सकते हो और आपकी जीवन साथी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हो, काम कर सकती हो। हमें इन डिफरेंसेस को समझना है, सेलिब्रेट करना है साथ में, और उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि ओके, यू आर गुड एट इट, आई एम गुड एट दिस, लेट्स डू इट टुगेदर। So there is no fighting, there is nobody above and beneath, right? So the guy in the movie was very good at household things, taking care of her like his home, and the actress Kareena was very good at business. So you have to realize that later in your life, or you may realize that हर किसी का काम करने का एरिया, क्षेत्र, अपनी अपनी क्षमताएं हो सकती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हो सकती है, और उसको समझते हुए उस असमानता को भी, जो इनइक्वालिटी है, उसको भी एंजॉय करना जीवन का सार है, खूबसूरती है। और जहां तक सरकार की बात है, ट्रस्ट मी बीइंग इन इट, वो अंधी नहीं है। उसको मालूम है जहां ताकतों का दुरुपयोग होगा उन्हें भी कैसे ठीक करना। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया अभी। अगर ऐसी कभी और समस्या आएगी, सो गवर्नमेंट कोर्ट्स आर ओपन फॉर इट, एंड बहुत सारे ऐसे पिक्चरों के मैं आपको उदाहरण भी दे सकती हूँ, जो मैं अभी आपको नहीं देना चाहती, जहां सुनवाई होती है और चीजों को ठीक तरीके से देखा जाता है। जो न्याय है वो सबके लिए एक जैसा है। थैंक यू सो मच।